जय गुरु जी सुमन आंटी जी, जय सत्संग जी, जय गुरु जी सत्संग जी। मैं 7:47 ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 21 ਤਰੀਕ ਹੈ 2025। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮਕਾਨ ਚੇਂਜ, ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਮਕਾਨ ਦਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਕਾਨ ਦਿਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿਲਾਇਆ ਵਾ। ਉਸ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਦਮ ਅਨੰਦਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਰਕ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਸੀ ਪਈ ਸੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਓਨਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਭਰ ਨਾ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂ। ਬਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉੱਦਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਿੱਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਕਾਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਵਾ ਤਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਿਮਿਟ ਦੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਟੈਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਡੁਗਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ, ਲੰਗਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਰਸਾਏ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਸਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दियो। हाँ जी, तो इस तरह से गुरु जी ने बाह पकड़ ली है आपकी और करवा रहे हैं आपकी परीक्षा पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जो संदेशा है आप सबके लिए, सबसे पहले मैं वो आप सबके साथ साझा कर लेती हूँ कि गुरु जी ने आज आपके लिए क्या संदेशा भेजा है। और वो कुछ ऐसा ही है संदेशा, क्योंकि मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं जिनसे मतलब मुझे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है संगत जी, क्योंकि मेरे पास सत्संग शेयर करने के अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें मैं निभाती हूँ, और साथ में सत्संग भी मैं शेयर करती हूँ। देखिए संगत जी, मैं कॉल किसी का भी नहीं उठा पाती। मुझे कॉल आता है तो काटना पड़ता है। बहुत ही मजबूरी में उठाती हूँ मैं कॉल, वरना कॉल मैं नहीं उठाती। प्लीज़ आपसे निवेदन करती हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे कॉल मत कीजिए। और देखिए, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी मेरे साथ मत शेयर कीजिए। आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो केवल और केवल गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए संगत जी, वो ही उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैसेज में भी मुझे आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मत भेजिए, है ना। क्योंकि देखिए मैं संगत जी, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकती। जो कुछ करने वाले हैं वो गुरु जी करते हैं।
तो ये संदेशा आप सभी के लिए है। गुरुजी कहते हैं, जद्दों मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किसी परेशानी ਦੇ ਨਾਲ एक ऐसे मोड़ ਤੇ खड़ा कर देंदा है जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई उम्मीद ना नजर आए। उस बख्शनहार ते तब विश्वास रखना और शुकराना करना मालिक दा, क्योंकि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ अपनी गोद ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੜਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਗਾ। याद रखी, चंगे लोकां दी मैं परीक्षा बहुत लेंदा हाँ, पर साथ नहीं छड्डदा। इस लई हर वेले दा शुकराना किता करो। संगत जी देखिए, गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं परीक्षा बहुत लेता हूँ, है ना। तो संगत जी, अगर कोई भी किसी की कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उससे मैं किसी को भी बाहर खुद से तो नहीं निकाल सकती, है ना। मैं केवल और केवल सत्संग शेयर करती हूँ, लेकिन इतना ज़रूर जानती हूँ कि अगर कोई समस्या है तो उससे आप जल्दी ही निकल आएंगे। अगर आप विश्वास गुरु जी पे करेंगे, उनके जल प्रसाद पे करेंगे, चंदन टीके पे करेंगे, है ना, ब्लेसिंग्स पे करेंगे, डिवाइन मंत्र जप करेंगे, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, कोई ना कोई रास्ता गुरु जी स्वयं ही निकाल के आपके पास भेज देंगे। कोई आइडिया हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है ना। तो कोई भी समस्या जो जिससे भी आप जूझ रहे हैं, वो कोई ना कोई आपका रास्ता गुरुजी खुद ही बना देंगे, है ना। पर इतना पता है कि समस्याओं की भी अपनी एक टाइमिंग होती है और फिर वो ख़त्म भी होती है ना। ये वक्त गुजर जाएगा, ये लाइन हमेशा याद रखें, है ना। मैं पहले भी बता चुकी हूँ और बार बार, क्योंकि मैं इस लाइन पे बहुत फोकस्ड रहती हूँ कि ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए संगत जी, हमेशा विश्वास बनाए रखें, कभी डामाडोल मत होइए, और अपनी प्रॉब्लम्स जो आपकी पर्सनल हैं वो भी मुझे मैसेज में भी मत भेजिए, क्योंकि मैं उनका कोई भी निवारण नहीं कर सकती। केवल और केवल गुरु जी कर सकते हैं, और वो आप गुरु जी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। और इसीलिए मैं यहाँ पे भी कहती हूँ हमेशा कि जब आप सत्संग शेयर करते हैं ना, तो उसमें भी जो गुरु जी, जैसे परीक्षा अभी बताया कि परीक्षा लेते हैं, तो वो भी यहाँ पे मत शेयर कीजिए कि मतलब अपने दुखों का वर्णन यहाँ पे मत कीजिए। यहाँ पर केवल और केवल गुरु जी ने आपका क्या कष्ट काटा है वो आप यहाँ पे शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि जब कष्ट गुरु जी काटते हैं तो आपको खुद फील होता है कि ये असंभव कार्य हमारा संभव हुआ है, और किसी की ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद का ही फल है, ये अचानक से कैसे हो गया, है ना संगत जी। तो आप यहाँ पे वो मुझे साझा कीजिए, क्योंकि कितने सत्संग मैं ऐसे भी वापस कर देती हूँ एक तरह से, क्योंकि मेरे को उनको कहना पड़ता है कि संगत जी आप दोबारा भेजिए। क्योंकि कितने सत्संग मेरे पास ऐसे आ जाते हैं जो बहुत दुखों का वर्णन अपना करते हैं, और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, है ना। क्योंकि आप अभी गुरुजी के पास नए नए जुड़े हैं, तो आप थोड़ा सब्र रखिए, धैर्य रखिए। आपकी जो भी समस्या है उसका निवारण गुरुजी जल्दी करेंगे। एक बात। दूसरी, जो गुरुजी ने आपका कष्ट काटा है, आपको यहाँ पे वो सत्संग यानी कि अपना अनुभव वो शेयर करना है, जिससे कि आप मतलब क्या फील करते हैं, दूसरा जो संगत परिवार है, जो आंटी हैं अंकल, वो भी महसूस करें और उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि इनका काम ऐसे इजीली सध गया है तो हमारा भी जल्दी सध जाएगा, है ना। और जब आप सत्संग शेयर करें तो वॉइस को क्लियर रखिए, और जो संदेश गुरुजी के आपके पास पहुंचते हैं, है ना, प्लीज़ वो भी यहाँ पे इकट्ठे करके शेयर मत कीजिए। अगर कोई एक आधा आपको शेयर करना है तो एक आधे की तो बात अलग होती है, लेकिन आप कंटिन्यूसली कितने सत्संग ऐसे भी आ जाते हैं कोई कोई कि बस एक के बाद एक संदेशा वो रीड करे जा रही हैं, आंटी रीड करे जा रही है, रीड करे जा रही हैं, कम से कम 15-20 संदेशे ही उन्होंने रीड कर डाले। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, है ना। आप यहाँ पे केवल अपना अनुभव साझा कीजिए संगत जी। गुरु जी हैं, बहुत बड़ी पावर हैं, बहुत बड़ी शक्ति है, बस आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, है ना। आप कहते हैं ना यहाँ पे क्या चीज़ चलती है आपको तो पता ही है, सेवा सिमरन सबर, है ना। आपको सेवा करनी है, सिमरन करना है और सबर करना है।
टाइमिंग गुरुजी की है। कोई भी काम आपका हो, टाइमिंग गुरुजी की है और गुरुजी करेंगे कल्याण। निश्चित रहिए, बिल्कुल उनका निश्चित समय है और वो अपनी टाइमिंग के अनुसार आपका काम फटाफट कर देंगे। परेशान मत होइए, आपकी कोई भी परेशानी है वो जल्दी दूर हो जाएगी, है ना। गुरुजी तो बहुत ही जल्दी सुनते हैं। बस विश्वास की जितनी ज़्यादा डोर हमारी मजबूत होगी उतनी जल्दी आपका काम बनेगा। मैं बहुत सत्संग शेयर करती हूँ और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चमत्कार मैंने देखे हैं कि जो असंभव काम था फिर संभव हो गया। और अपने अपने भी मेरे ऐसी पर्सनल अनुभव बहुत सारे हैं कि बता नहीं सकते। क्योंकि संगत जी एक बात कहना चाहती हूँ कि कुछ लोगों के काम बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ के देर से होते हैं। मान लीजिए कि दो संगत परिवार एक साथ ही गुरुजी के साथ जुड़े। सपोज कोई 2 महीने पहले ही गुरुजी के साथ जुड़ा है, कनेक्शन बनाया है उसने गुरुजी के साथ। अब वो दोनों के दोनों ही गुरुजी का बराबर से नाम जाप कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, बड़े मंदिर जा रहे हैं, जल प्रसाद ले रहे हैं। लेकिन एक परिवार को तो जल्दी जल्दी ग्रोथ मिल गई, है ना, उनके काम फटाफट होने लगे। लेकिन एक आंटी के या अंकल के नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न कुछ पास्ट कर्मा भी है ना। पास्ट कर्मा किसके कितने हैं ये नहीं कह सकते। तो इसीलिए थोड़ा सा कहते हैं कि धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि आपका जो भी मंत्र जाप है थोड़ा सा वो कर्म काटने में भी तो लगेगा ना। इसीलिए कहते हैं आप सत्संग सुनिए। जितना ज़्यादा आप सत्संग सुनते हैं आपके यहाँ पे ये पुण्य कर्म में काउंट होता है और इससे भी आपके कर्म कटते हैं। और जब आप सत्संग को शेयर करते हैं, सपोज आपने एक जगह शेयर करा, तो एक जगह शेयर करने से अगर किसी संगत का इतना सा भी काम अगर बनता है, इतना सा भी पॉजिटिविटी यहाँ पे पहुँचती है, यानी कि आपने किसी को थोड़ी सी भी खुशी दी, सांत्वना दी, मोटिवेशन दिया, तो भी वो आपके ही खाते में काउंट हो जाता है कि आपने एक नेक काम करा, एक भलाई का काम करा। तो इसीलिए कहते हैं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप एक जने को कर सकते हैं, एक को, दो को कर सकते हैं, दो को, चार को कर सकते हैं, चार को, ना जाने किसका भला आपके हाथों हो जाए, है ना। और इसमें आपके कोई पैसे भी खर्च नहीं होने। क्या होगा यहाँ पे, आप नेकी का काम कर रहे हैं, है ना। ये एक नेकी का काम है, इसलिए सत्संग को जरूर शेयर कीजिएगा। सुनने के बाद देखिए, गुरुजी अगर आप मानते हैं कि हाँ गुरुजी हम सबको देख रहे हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं, तो समझ लीजिए कि इस वक्त भी मेरे साथ गुरुजी बैठे हैं और इस वक्त आपके साथ भी गुरुजी बैठे हैं। और गुरुजी के बैठने से एक बहुत प्यारी सी कहानी मुझे याद आ गई है, मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना, क्योंकि आज मेरे पास 2-3 मैसेज ऐसे आए जो बड़े दिल को झकझोरने वाले थे। लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, किसी के भी पर्सनल मैटर में, चाहे वो किसी का हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे किसी का फाइनेंशियल हो, है ना, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तो केवल ये कह सकती हूँ जो करने वाले हैं परमात्मा है। और परमात्मा आपके मतलब आपके भाग्य के निर्माणकर्ता परमात्मा ही है। और हम अपने भाग्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं, वो ईश्वर के साथ कनेक्शन बना के, है ना, प्रार्थना करके, बस उनके साथ ही बना सकते हैं। बाकी कोई ताकत नहीं होती कि किसी का कोई कुछ बिगाड़ सके या कुछ भला कर सके। मैं इतनी दूर बैठी हूँ संगत जी, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ पे केवल और केवल प्रार्थना कर सकती हूँ कि जो भी संगत परिवार है सब खूब खुश रहें, है ना, इतना ही कर सकती हूँ। लेकिन करने वाले केवल और केवल गुरु जी हैं। यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल जाएंगी, हो सकता है आपके कोई प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, हो सकता है आपको यहाँ पे कोई उपाय मिल जाए, है ना। और कर्म तो देखिए कटेंगे अगर यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, दिमाग आपका थोड़ा देर शांत होता है। तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, उससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। और भगवान के साथ हमें कनेक्शन बनाना क्यों ज़रूरी है वो भी आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर जरूर होगा। तो संगत जी बात कुछ ऐसी है कि एक आदमी होता है और वो मंदिर में जाता है और बैठता है। मंदिर में बैठता है तो उसको वहाँ पे जाके बहुत अच्छा सा लगता है और वो जो है बैठ के भगवान का
थोड़ा सा भजन सा अपने मन ही मन में गुनगुनाने लगता है। इतने में क्या होता है, वहाँ पे 2-4 और भी जो भक्त होते हैं वो आने लग जाते हैं। तो वो देखता है कि यहाँ पे ज़्यादा भक्त आ रहे हैं, तो थोड़ा ज़ोर-ज़ोर से अपने भजन को गाना शुरू कर देता है। भगवान जी का ध्यान करने लग जाता है, ज़ोर-ज़ोर से गाने लगता है। और जब वो गाने लगता है तो थोड़े दिन में उसे कुछ ऐसी सी हैबिट होने लग हो जाती है, क्योंकि उससे सब लोग भगत जी के नाम से पुकारने लग गए, तो उसे बड़ा मज़ा आने लग गया। अब मज़ा इतना ज़्यादा आने लग गया कि जब उसे कोई नहीं देखता तो वो चुप रहता, लेकिन जैसे ही बहुत सारे लोग वहाँ पे होते मंदिर के अंदर, तो वो गाना ज़ोर-ज़ोर से गाने लगता। तो सब उसको बहुत रिस्पेक्ट देने लगे, भगत जी कह के पुकारने लगे, तो उसको बहुत ही आनंद आने लगा। अब थोड़े दिन में क्या हुआ कि वहाँ पे एक और महात्मा जी आए और वहाँ पे मंदिर में वो भी बैठ के भगवान का भजन करने लगे। अब जब दूसरे महात्मा जी आने लगे तो लोग उनको भी प्रणाम करते, उनका भी आशीर्वाद लेते। लेकिन अब वो महात्मा जी सीधा उल्टा करते। जब वहाँ पे कोई नहीं होता तब वो बहुत अच्छे से अपना नाम जाप करते और भजन करते, और जब वहाँ पे ज़्यादा लोग आने लगते तो वो चुप हो जाते। तब वो जो भी ध्यान करते वो अपने मन में ही करते। तो वो पहले वाले जो थे भगत जी, वो ये देखते रहते और वो सोचते कि ये मैं तो इसका उल्टा कर रहा हूँ पूरी तरह से और ये ऐसे कर रहे हैं। तो उन्हें थोड़े दिन तो ये समझ नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या बात है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि वैसे तो आप अच्छे से भजन करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे जब भीड़ आती है तो आप चुप हो जाते हैं। तो वो और वैसे आप अच्छे से बोलते हैं और मैं तो इसका ठीक उल्टा करती हूँ, पर आप ऐसा क्यों करते हैं? तो वो कहते हैं इसका कारण तुम्हें थोड़े दिन में अपने आप पता चल जाएगा। वो सोचता है पहले वाले भगत जी कि अच्छा। फिर वो थोड़े दिन के बाद क्या करता है, जो पहले वाले भगत जी होते हैं अपने लिए एक नई चप्पल खरीदते हैं। और जब वो नई चप्पल खरीदते हैं महंगी सी, तो वो जो है मंदिर के बाहर चप्पल उतारते हैं और अपना अंदर बैठ जाते हैं, अपना रूटीन जो भी उनका था उसी हिसाब से वो पूजा पाठ करने के बाद भजन कीर्तन करने का। अब भीड़ तो अंदर आ रही है, लेकिन अब आज क्या हुआ, आज कुछ ऐसा खास हुआ कि उनका ध्यान जो है अपनी महंगी सी नई चप्पल में ही जाता रहा कि कोई मेरी चप्पल ना चुरा ले। इस इतना ज़्यादा वो बेचैन रहे, उनका किसी चीज़ में मन ही नहीं लगा। अब जब मन नहीं लगा तो वो जब मंदिर का उनका टाइम ओवर हुआ, ख़त्म हुआ, तो वो बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी चप्पल जो है वहाँ पे जूं की त्यों है। तो उन्होंने बड़ी अपने दिल को तसल्ली दी कि आह! शुक्र है मेरी चप्पल यहीं है, किसी ने चुराई नहीं। और वो चप्पल पहन के सीधा अपने घर पहुँच गए। जब वो घर पहुँच गए तो रात को वो सोते हैं और सोने के साथ ही उनको जो है, जैसे ही सोते हैं उनको नींद में सपना आता है, और सपने में वो क्या देखते हैं कि वो चप्पल का ही सपना देखते हैं और चप्पल मंदिर के बाहर है और बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और जो चप्पल की निगरानी कर रहा है। तो वो उनको बड़ी वो हुई टेंशन सी कि ये मुझे आज चप्पल का सपना कैसे आ गया। तो वो भागे भागे गए। अगले दिन जैसे ही सुबह उठे और सीधा मंदिर जाके वो महात्मा के साथ उन्होंने वो सपना शेयर किया और कहा कि रात मुझे ऐसा सपना आया, कल ही मैंने चप्पल खरीदी और मेरे को ये सपना भी आया। तो फिर वो महात्मा जी कहते हैं कि देखा तुमने, तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसने कहा मैं कुछ समझा ही नहीं। कहते देखो तुम समझे क्यों नहीं, कि देखो तुम यहाँ पे भगवान का जो भजन कर रहे हो, तो भगवान तुम्हारी क्योंकि तुम्हारा ध्यान चप्पल में जा रहा था, तो भगवान तुम्हारी चप्पल की रक्षा करने के लिए खुद खड़े हो गए बाहर जाके, और तुम यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर रहे और भगवान मंदिर के अंदर होते हुए भी बाहर चले गए। तो फिर उसको थोड़ा सा अपने आप में एक पछतावा हुआ कि हे भगवान मैं कितना मूर्ख हूँ, मैं कितना अज्ञानी हूँ। हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। जब हम भगवान का चिंतन करते हैं तो फिर हमारे से रिलेटेड जो भी समस्या है किसी भी टाइप की, खुद भगवान हमारी चिंता करते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के ऊपर इतना भरोसा करना चाहिए, है ना। हमारे गुरुजी भी कहते हैं ना कि
सरेंडर करो। तो सरेंडर का मतलब यही है कि हम चिंता ना करें और चिंतन करें, है ना। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं उसकी चिंता क्यों करें, है ना। हमारे हाथ में केवल चिंतन करना है, तो हम केवल और केवल अपना उतना कार्य ही करें, है ना। तो संगत जी, मैं आज ये कहानी इसीलिए सुना रही हूँ, है ना। हर बार नहीं सुनाती हूँ, लेकिन क्योंकि आज कुछ ऐसे ऐसे मैसेज आ गए कि जो बहुत पर्सनल थे और जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, इसलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि देखिए, जो भी आपको कनेक्शन बनाना है वो केवल और केवल गुरु जी के साथ बनाइए और धैर्य रखिए और विश्वास रखिए, क्योंकि परीक्षा तो गुरु जी लेते ही हैं, ये बात तो आप मान लीजिए। लेकिन गुरु जी फेल नहीं होने देते। आपकी जो भी समस्या है उससे गुरु जी आपको जल्दी ही निकाल देंगे, है ना। तो अब शुरू करते हैं आज के सत्संग, और मैं पहले रिटर्न सत्संग ले रही हूँ। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरु जी की दया कृपा मेहर सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, गुरु जी का आदेश आया है कि शुक्राना कर, तेरे सारे काम बना रखे हैं। संगत जी, हर कोई मिलने पाने प्रांत हो जाने का शुक्राना करते हैं, लेकिन संगत जी हम एक दूसरे से बोल रहे हैं, शुक्राना शेयर कर रहे हैं, चल फिर रहे, सांस ले रहे, अच्छा सोच रहे हैं, हर तरह से नेगेटिविटी दूर हो रही है। जैसा पहले रहते थे हम, गुरुजी ने जब से हमारा हाथ पकड़ा है तब से सब गुरुजी की असीम कृपा दया से सब बदल रहा है। अगर गुरुजी हमारे साथ हैं, गुरुजी हमारे हाथ ना पकड़े होते तो क्या होता हमारा। संगत जी, मैंने एक शुक्राना सत्संग में सुना था कि अगर हम कहीं जा नहीं सकते या किसी वजह से कोई पूजा उस स्तर से नहीं कर सकते, तो मन में वो विचार भाव सोचकर कर लें तो पूजा अर्पण स्वीकार हो जाता है। संगत जी, गुरु जी सारे संगत परिवार को सलामत खुश रखें, यही मेरी गुरु जी से अरदास है। मुझे लेखन में गलती हो गई हो तो क्षमा मांगता हूँ। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ये था सत्संग, और रिटर्न में था। अभी एक रिटर्न सत्संग और ले रही हूँ मैं ये, और ये है जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। सत्संग शेयर करते हुए अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ संगत जी एंड गुरु जी मुझे माफ़ करना। मेरी बेटी बहुत परेशान रहती है, उसके बाल जड़ से उतर रहे हैं, सर पर सीकरी से जख्म बन जाते हैं। तो गुरुजी का मैसेज आया कि संडे शाम को जब सूरज ढलता है तो नीम की एक टहनी तोड़ के ले आओ और पेशेंट के ऊपर से नीचे 7 बार इस मंत्र को बोलकर भैरव ओम भैरवाय नमः और हर बार उस टहनी को झाड़ना है। ये सब कुछ पेशेंट के दरवाजे के पास खड़ा करके करना है। इससे उसकी हर पीड़ा दूर होगी, हर विपदा दूर होगी। शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, जो हमारी हर परेशानी को समझते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और एक सत्संग ये रिटर्न में लिखा हुआ है और बहुत बारीक अक्षरों में इन्होंने लिखा है। संगत जी, इसीलिए मैं कहती हूँ कृपया करके आप अपनी वॉइस में ही सत्संग शेयर कीजिए, क्योंकि मैं चश्मा लगाती हूँ और मेरे को जो है इतने ज़्यादा बारीक अक्षर देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। संगत जी, जूम कर कर के इधर से उधर नचाते नचाते तब मैं पेज को तब पढ़ पाती हूँ, और बहुत टाइम जाता है, और जोर भी बहुत पड़ता है आँखों पे। ट्राई करती हूँ मैं, जैसा भी मुझसे पढ़ा जाएगा, माफ़ करना गुरु जी।
और संगत जी आप लोग भी माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत पढ़ जाऊँ तो। ट्राई कर रही हूँ मैं इसको पढ़ने के लिए। ये लिखते हैं, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहेब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहेब। गुरु जी मेरी कोई औकात नहीं जो आपका शुक्राना कर सकूं। ये तो आपकी कृपा है जो आप शुक्राना करवा रहे हो। कितनी बार बोल बोला आप ने शुक्राना करने को, पर नहीं कर पाई। हर रोज़ आपका सत्संग होता है गुरुजी, हर पल मेहर है आपकी। शुक्राना गुरुजी। आपने मेरी बड़ी बेटी का ऑपरेशन बहुत ही सरल, बहुत ही आसानी से करवा दिया। बिल्कुल ठीक है आपके अब 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 के आपकी कृपा से। कमज़ोर है, दवाइयाँ चल रही हैं, कृपा आपकी बनी रहे उस पर। छोटी बेटी की जॉब में आज ही प्रमोशन हुआ है। गुरुपा का आज ही मैसेज आया था, मिठाई बाट खुशखबरी आएगी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। पति और बेटे पर बहुत वशीकरण और मारण क्रिया की हुई है गुरुपा, देख रहे हैं हर पल उनकी कृपा करो गुरुदेव। गुरुपा आप जानते हो कितने मेरे अपने मारण क्रिया कर रहे हैं। बार बार आप बार बार सही करते हो, वो लोग बार बार फिर क्रिया किए जा रहे हैं। गुरुपा 30 साल हो गए सहते सहते। शादी हुई तब से। शादी से पहले भी ब्लैक मैजिक से परेशान थी। शादी के बाद ससुराल वाले मायके वाले सब मारण क्रिया कर रहे हैं। आपका बार बार मैसेज आते हैं ब्लैक मैजिक के। गुरुपा अब बचा लो, थक गए गुरुपा। जब से आप आए हो ज़िंदगी में बहुत कृपा हुई है, बहुत कुछ सही होता जा रहा है। आप बोलते हो तू बहुत भोली संगत है, मेरी बहुत ख़ास बेटी है। मेरा तो आपके सिवा कोई नहीं रहा गुरुजी। मायके ससुराल सब सब दोस्तों से सब बोलना बंद हो गया, सब दूर हो गए गुरुपा। सब आपका सहारा, अब आपका सहारा है, आप ही देख रहे हो सब कुछ। सब आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना हो गुरुपा। वो पूरा परिवार आप को मानता है, जल प्रसाद लेता है, संगत सत्संग भी सुनता है। श्रद्धा पूरी रखता है आप में। जय गुरु जी बोलते हुए उन सब की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो भूल गलती हुई हो मुझसे माफ़ कर दो गुरुपा। मेरी गलती की सज़ा मेरे परिवार को ना मिले। मुझे सद्बुद्धि दो, मेरे परिवार को सद्बुद्धि दो गुरुपा। क्षमा करो गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओहो, ये था सत्संग। और भाई इतना बारीक अक्षर कि मेरी तो आंखों में दर्द हो गया। संगत जी रिक्वेस्ट है, कृपया करके प्लीज़ थोड़ा अपना ना रिकॉर्डिंग करके भेजिए संगत जी सत्संग को। बहुत ज़्यादा मतलब ये इतने बारीक अक्षर थे कि मैं इनको बहुत जूम कर करके पढ़ी हूँ और इधर से उधर खिसका खिसका के जैसा भी गुरु जी ने पढ़वाया संगत जी मैंने शेयर किया, क्योंकि गुरु जी के चरणों में किसी ने बड़ी आस से रखने के लिए मेरे पास भेजा। तो मेरा प्रयास रहता है कि मैं सबके सत्संग शेयर करूं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करूं। तो मैं आप सबके सत्संग गुरु जी के चरणों में रखती हूं और सभी संगत परिवार के लिए गुरु जी से प्रार्थना और अरदास भी करती हूं कि गुरु जी जिसके जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, आप दूर कीजिए, रास्ता दिखाइए, मार्गदर्शन कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो उसके लिए हम सबको क्षमा कीजिए। सारे संगत परिवार को खूब खुशियाँ मिलें।
जो भी आंटी अंकल सत्संग को पूरा सुन रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, गुरु जी उनका खूब 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 कल्याण करें, खूब ढेर सारी खुशियाँ दें, कष्ट दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी करेंगे डेफिनेटली कल्याण। संगत जी, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं कल्याण। विश्वास रखिए, आपके साथ भी बहुत बहुत जल्दी ही चमत्कार होने ही वाले हैं, क्योंकि गुरु जी ने आपको मुट्ठी भर संगत में शामिल जो कर लिया है, क्योंकि तभी तो आप सत्संग सुन रहे हैं, वरना सत्संग सुनने में तो मन ही नहीं लगेगा। आप मुट्ठी भर संगत हैं, इसीलिए आपका मन लग रहा है। बस गुरु जी पे छोड़ दीजिए, गुरु जी सबका कल्याण करेंगे। अब सुनिए सत्संग जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स आपके लिए भेजी हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हुआ क्या ना कि मतलब सैटरडे को ना मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है, तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी बर्तन ना कुछ पुराने हो गए हैं, तो जाओ इनको ना दे के और नए बर्तन ले आओ। मतलब जैसे कढ़ाइयाँ वढ़ाइयाँ हम लोग कई सालों से यूज़ करते रहते हैं तो ख़राब ही होने लगती हैं। तो मैंने कहा इनको क्या मैं बर्तन वाली को दूंगी, 100 रुपये भी नहीं देगा इन बर्तनों के, तो मैं ये पुरानी कढ़ाई ना काम वालियों को दे दूंगी, वो बनाती रहेंगी सब्जियाँ इनमें और हम लोग ना नए बर्तन ले आते हैं। गुरुजी मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब ऐसा होगा, कि मैंने सोचा चलो सिंपल सिंपल जैसे कढ़ाइयाँ ले लेंगे। तो गुरुजी मानोगे संगत जी आप मानोगे, गुरुजी ने ना इतने अच्छे अच्छे बर्तन दिलवाए, मतलब मेटल की कढ़ाई, मेटल की मतलब लोहे मेटल की मिक्स कढ़ाई और तवा और मतलब छोटा फ्राई पैन और मतलब काफ़ी कुछ, जैसे मतलब 7,000 का हमने सामान मतलब ले लिया वहाँ से बर्तनों का। सोचा भी नहीं था कि इतने का लेंगे, सोचा था चलो थोड़ा सा है तो ले लेंगे। लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने इतनी अच्छी शॉपिंग कराई, इतने अच्छे बर्तन दिलवाए गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी तो हमेशा हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रहते हैं। तो गुरुजी ने एक आदेश दिया था कि मंगलवार को ना 1.25 किलो गुड़, लाल कपड़ा और क्या कहते हैं केले हनुमान जी के मंदिर में वो पूजा करके और मतलब किसी गरीब को दान देने हैं। मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, लेकिन अपने घर में ही ना हनुमान जी की मूर्ति के सामने रख के पूजा करके उनको अर्पण करके, और फिर मैंने, हमारे घर एक माली बाबा आते हैं काम करने, तो मैंने उनको दे दिए। वो बहुत खुश हुए, तो कहने लगे बेटा आप हम लोगों का ना कितना ध्यान रखती हो, हमेशा चाय पानी पूछती हो, हमेशा खाना खिलाती हो, तो भगवान आपको ना बहुत बरकत दे। तो मैंने कहा ये तो हमारे गुरु जी की कृपा है, जो करवा देते हैं सेवा हमसे हम कर लेते हैं। और गुरु जी को पता है कि मैं तो ना बहुत बड़े बड़े पाठ भी नहीं सुन सकती और बहुत बड़े बड़े काम भी नहीं कर सकती, लेकिन हाथ से जितनी सेवा हो सकती है मैं कर देती हूँ। तो बस गुरुजी को पता है कि मैं कैसी हूँ और मुझसे क्या करवाना है, तो वो अपने आप ही मुझसे करवा लेते हैं। एक्चुअली ना मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि मेरी बिटिया शादी लायक हो गई है, तो उसके लिए कुछ मतलब लड़का वड़का देखो। तो गुरुजी की कृपा से ना 1-2 रिश्ते आए हैं, तो वहाँ बात चल रही है। अगर गुरुजी की कृपा होगी तो मतलब बात बन जाएगी, और अगर बात बन गई तो मैं अपना एक शुक्राना सत्संग और शेयर करूँगी और गुरुजी से अरदास करूँगी कि है गुरुजी बात बन जाए तो अच्छा है। बिटिया की शादी की उम्र भी हो गई है, तो बिटिया अपने घर चली जाए, और फिर आगे फिर बेटा है तो फिर बेटे की भी करनी है। तो मैं जानती हूँ गुरुजी मेरी बात ज़रूर सुनेंगे और मेरी अरदास को ना ज़रूर पूरा करेंगे, और जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मुझे अपने गुरुजी पर ना पूरा विश्वास है। हमारे गुरुजी हमारी हर एक इच्छा को पूरा करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सुमन आंटी जी आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं, गुरुजी ने आपको अपार ब्लेसिंग दी हुई हैं और आपके ऊपर अनंत कृपा बनाई हुई है, अनंतम कृपा बनाई हुई है। तो गुरुजी आपको सदा खुश रखें, आपके परिवार पर ब्लेसिंग बनाए रखें जो आप हमारा सत्संग शेयर करती हैं। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो हमें गुरु पा ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो संगत जी, हमारे जहाँ सत्संग हर मंथ सत्संग होते हैं, 2 सत्संग होते हैं। तो कल 19 तारीख को सत्संग था हमारे जहाँ, तो हम सत्संग में गए। तो सत्संग में संगत जी हमारी सेवा लगी होती है, चाहे प्रसाद की और लंगर प्रसाद की। तो जैसे हमने माथा टिका, वो तिलक लगाते हैं ना गुरु जी का, वो तिलक लगाया। तो ठीक है, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद तो जल प्रसाद मिलता है गुरु जी का जल प्रसाद, वो लेकर हम घर में आ गए। जब हम घर में आए तो मैंने ना हमारे जहाँ पे गुरु जी का लॉबी में स्वरूप लगा हुआ है और नीचे दीवान बेड लगा हुआ है, तो मैंने ना वो जल प्रसाद लाकर वहाँ रख दिया। तो ऐसे वहाँ ही पड़ा रहा। तो फिर हम ऐसे ही पड़ा रहा। तो वैसे फिर मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैंने ना ऐसे ही फ़ोन खोला, तो फ़ोन में ना गुरु जी का मैसेज आया कि तू ऐसे किया कर तो मैं ना तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा गुरु जी आप दर्शन तो मुझे देते ही नहीं हो, तो मैं चलो ठीक है, मैं करूँगी तो ज़रूर, ठीक है। तो फिर मैंने जब वो पानी वाली बोतल उठाई तो वो सील बंद थी। तो उसमें ना आधी बोतल पानी की खाली थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता जे पानी जल प्रसाद कहाँ गया और मेरे गुरु जी ने क्या किया उस जल प्रसाद का, जे गुरु जी जाने, मैं कुछ नहीं जानती। और फिर जो मैं नहाने को जा रही थी तो मैं अपनी अलमारी में गई, अलमारी से कपड़े निकालने लगी। तो मैंने अपना जैसे शीशे में फेस देखा तो मेरे पूरा ओम बना हुआ था। जो गुरु जी का तिलक था ना लगा हुआ, उसका सुबह ओम बन गया। तो रात को कुछ नहीं था, तो सुबह वो ओम बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आपने मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ब्लेस किया, मेरे जल प्रसाद को ब्लेस किया गुरु जी। ऐसे ही हमारे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना और अंग संग बच्चों के साथ ही रहना, हमारे साथ रहना गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहना और हमारा साथ देना। मेरे गुरु पा हमेशा साथ रहना। हमें बहुत कृपा हुई है गुरु जी की और आगे भी होती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी की, गुरु जी हमारे साथ ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। मेरे गुरु पा बहुत दयालु हैं, बहुत सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा शिव। ओम नमः शिवाय प्यारे गुरु पसरा सा अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जैसे कि 21 दिन का शुक्राना का मुझे आदेश मिला है गुरुपा की तरफ से, इसमें साझा 11वां दिन है। संगत जी, मैं पटना से, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जो भी गलती हुई भूल चूक मुझे माफ कर देना गुरुपा, माफ कर देना सुनती। जैसे कि संडे को रात में मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए थे, उनका मैसेज भी आया था कि मैं तुझे आज सपने भी लाल चोले में दर्शन दे पाऊंगा। तो मुझे गुरुपा ने मेरी मायके की तरफ से मेरी जो चाची हैं उनके रूप में दर्शन दिए, जो मेरी मम्मी की देवरानी लगेंगी। गुरुपा ने उनके रूप में मुझे दर्शन दिया और वो चाची मुझे बहुत लाड प्यार कर रही हैं और लाल कलर का साड़ी पहने हुए हैं, जो मुझे बचपन से बहुत लाड और प्यार किया, बहुत अच्छा से मानती है। उनके गोदी में मैं सर रख के रो रही हूँ।
मुझे वो प्यार से लोरी सुना रही है, मेरे सर पे हाथ सहला रही है, मेरे आँख से आँसू गिर रहे, मुझे पूछ रहे हैं बेटा आप रो क्यों रही हैं? बोली नहीं चाची, बहुत दिन हो गया ना आपके हाथों का लोरी, आपके हाथों का थपकी मिलना ना, आपका लोरी सुना, इसलिए मेरी आंखों से आंसू छलक गए। बोलते नहीं बेटा रोते नहीं है। अब ससुराल में कैसे सब लोग, मैं ससुराल की बातें कर रही हूँ। हाँ चाची सब लोग सब बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपने घर के बुराई किसी के पास करती नहीं। हाँ चाची सब लोग बहुत अच्छे हैं। बोले नहीं बेटा आपके घर में कुछ नहीं ठीक है, आप हमसे छुपा रही? नहीं चाची मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, सब कुछ सही है। उसके बाद संगत जी चाची मुझे प्यार कर रही हैं, मुझे नाश्ता भी करवा रही हैं। नाश्ता में क्या है सर में भूल गई, याद नहीं आ रहा है। उसके बाद वो अपना घर दिखा रही हैं, उनकी भी देवरानी जेठानी में कुछ खटपट चल रहा है, वही सब बता रही हैं। क्या हुआ है वो सब नहीं याद है उतना, लेकिन ग्रुप जो याद रखवाना चाह रहे थे उतना ही याद है। और उसके बाद अपना घर दिखा रही हैं, उनका बहुत अच्छा घर है, आलीशान बंगला है, बहुत सुंदर है। उसके बाद मेरा ड्रीम खत्म हो गया और सपने में आकर के गुरुपा मुझे मेरी चाची के रूप में दर्शन दे करके गुरुपा मेरा कौन सा कष्ट काट गए मुझे नहीं पता संगत जी। इसलिए अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज आपका, आई लव यू सो मच पापा। उसके बाद सुबह में मैसेज आया कि बेटा मैं तुझे आज ऑरेंज चोले में दर्शन देवाऊंगा। मैं सुबह से ढूंढने लगी ऑरेंज चोला में, मैं बेटी को स्कूल छोड़ने गई तब तो मुझे कोई साधु संत नहीं दिखा जो मैं ऑरेंज चोला में दर्शन दूंगी। जब मैं बेटी को स्कूल से लेने गई, जब मैं उसको स्कूल से लेकर के लौट रही थी तो सब यात्रा दिखाई दिया मुझे, जिसपे अंतिम यात्रा हो रहा था। वो भगवान जी के पास गए हैं और ऑरेंज कलर का धोती वोती सब कुछ उनके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। मेरे मन में थॉट आया कि गुरुपादा जी बोले थे कि तुझे ऑरेंज चोला में दर्शन देवाऊंगा, शायद गुरुपा ही मुझे इसी के रूप में दर्शन दे रहे हैं। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे नहीं पता आप उस रूप में मुझे मेरा कौन सा कष्ट ले गए हैं, मुझे ये भी नहीं पता पापा। आपका ब्लेसिंग देने का अनंत अनंत शुक्राना पापा, अनंतम कोटि शुक्राना। अनेक प्रकार से ब्लेसिंग देती हूँ पापा, हर रोज़ तो 777 4 टाइम्स 7 तो मुझे मिलता ही है। हर बार हर टाइम जितना बार भी मैं रोड पे निकलती हूँ उतना बार, अपने तो 3 बार मैं निकल जाती हूँ, वो बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए, स्कूल से लाने के लिए, फिर कोचिंग से लाने टाइम में भी। हर टाइम आपका ब्लेसिंग मेरे साथ रहता है। जब मैं घर से निकलती हूँ बोलती पापा मेरे साथ चलो, और हमेशा मैं आपका मंत्र जप मेरे मन में चलता ही रहता है। किसी से बात भी कर रही हूँ तो मन में गुरुपा का ही मंत्र चल रहा है, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय, मेरे मन में हमेशा आपका मंत्र जप चलता है। गुरुपा ने बहुत तरह से मुझे ब्लेसिंग कर दिए हैं, कौन सा कष्ट काटे गुरुपा ही जाने, उनकी महिमा वही जाने, मैं नहीं जानती संगत जी। गुरुपा ने मुझे बहुत बड़ा हादसा से बचाए, क्योंकि उसी टाइम बहुत बड़ा हादसा मेरे साथ होने वाला था। उसी सब यात्रा की वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था। जैसे मैं निकल रही थी तो सब यात्रा निकला, फिर ट्रैफिक भी निकलने लगा। मैं निकली तो कोई नहीं था, मैं इस रोड खाली देख के मैं क्रॉस करने की कोशिश की। एक बाइक वाला अंधाधुंध चला के आ रहा था, मेरी बेटी थी मेरे साथ और हम भी थे। जैसे लगा संगत जी सामने में कोई आ करके मुझे खींच करके रोड के ऊपर टिक कर दिया। गुरुपा ही होंगे और कौन हो सकता है, किसी न किसी रूप में आकर गुरुपा मुझे बहुत बड़ा हादसा से बचा लिए। कौन सा कष्ट ले गए काट करके पापा, नहीं तो मेरा पैर फ्रैक्चर होता या मेरा पैर टूट जाता, दो में से एक ही चीज़ होता। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी है, दुर्गा जी का भी मंदिर है, हर रोज़ वहाँ पे शिव जी का भी मंदिर है। गुरुपा अपना सामने से कैसे होने देते, हर पल मेरी रक्षा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगला सत्संग की तैयारी करूँ मैं संजय जी, कोई भी भूल चुक हुई तो मुझे माफ़ कर देना, माफ़ कर देना सुमन आंटी, माफ़ कर देना गुरुपा, सुमन आंटी शेयर कर देना, ये गुरुपा का आदेश है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, हकन जी, जय गुरु जी। मैं रूपाली गुरुपा की बेटी आज सुबह का अमृतवेला का शुक्राना करी गुरुपा के समक्ष। गुरुपा को शुरू करने से पहले
मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। गुरुपा जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करने के लिए, तो गुरुपा के साथ तो जुड़े हैं बहुत पुराना, बहुत मतलब हमें याद भी नहीं है कब से जुड़े हैं, लेकिन गुरुपा ने 2024 जून से अपने आप से जुड़ा है पूरा एकदम हाथ पकड़ के। तब से जो हाथ पकड़े हैं एकदम अभी तक गुरुपा हमें संभाल रहे हैं। तो गुरुपा के बारे में क्या बोलूं, बहुत बहुत अच्छे, बहुत प्यारे हैं, बहुत ध्यान रखते हैं सबका, सब बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। उसमें से मैं भी एक बेटी हूँ उनकी। हर हर चीज़ के लिए, हर उस मतलब कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ मतलब क्या होना है क्या नहीं होना है, सब कुछ गुरुपा पहले से बता देते हैं। अभी जैसे कुछ दिनों से मैसेज आ रहा है, गुरुपा बोल रहे हैं कि ज़्यादा तो टेंशन क्यों कर रही है, तो इतना चिंता में क्यों घूमती रहती है, सब कुछ अच्छा होगा तेरा। तो मैं बैठा है ना, तो हाँ गुरुपा आप हो, इसलिए तो हम चिंता नहीं करते, लेकिन वो है ना हम तो मनुष्य हैं, तो हमें थोड़ा बहुत मतलब आ ही जाता है दिमाग में, जितना कोशिश करें। फिर गुरुपा बहुत हिम्मत देते हैं कि जो भी हम करना चाहते हैं उसमें गुरुपा हिम्मत देते हैं। गुरुपा बोल रहे हैं कि तू कर, शुरू कर, मैं हूँ, बस तेरे नाल ही खड़ा है, तू बस मतलब जो काम मैं करना चाहती हूँ कह रहे, वो बस तेरा करने में देरी है, तू शुरू कर, सब कुछ ठीक होगा, तो मतलब आगे बढ़ती जाएगी। तो वही गुरुपा, हिम्मत, और भी हिम्मत चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिना वो करके हम शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं जल्दी हो जाए, लेकिन वो उतना देर होता रहता है। तो ये कोशिश है बाकी हम मतलब जो मन में है करना चाहते हैं वो करना स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे ग्रुपों के मैसेज आ रहे हैं, और सारे मैसेज जो होते हैं वो सारे पॉजिटिव मैसेज होते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अम, जिनको सुन के आपको कोई लाभ नहीं है, सब अच्छे पॉजिटिव होते हैं, कुछ हेल्थ रिलेटेड होते हैं, बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड भी होते हैं, चाहे वो मैसेजेस हो चाहे वो सत्संग हो। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, जो हमें आप हर तरफ से गाइड करते हो। और जैसे गुरुपा कल सोमवार था, तो कल सुबह में जब उठी तो जैसे इधर उधर हम देखते हैं ना, तो बाहर की तरफ, तो अचानक मुझे हमारे यहाँ ज़्यादातर ग्रे कबूतर ज़्यादा है, तो अचानक मैंने थोड़ा दूर नज़र आया कि मतलब एक मकान से कम 4-5 एकदम मिल्की वाइट कबूतर कभी इधर कभी उधर ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब इतना सुंदर, मतलब पहली बार मैं काफ़ी दिनों बाद मैं देख रही थी। ज़्यादा दूर नहीं था हमारे घर से, का पास ही था, लेकिन दिखाई देता बार-बार वो कबूतर सारे एक बार आके बैठ रहे हैं, फिर उड़ रहे हैं। और ये सफ़ेद कबूतर बहुत अच्छा होता है। तो अ, मैंने काफ़ी दिनों बाद कबूतर देखा, तो जैसे हम सुनते हैं ना सत्संग में कि हमें ये
देखने को मिला है, वो देखने को मिला है। तो हमारे यहाँ तो मतलब ज़्यादा बहुत ग्रे कबूतर है, सफ़ेद तो बहुत ही कम। तो आज पहली बार देखा तो इसके लिए भी शुक्राना गुरु का, बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। और ये सुबह का जो अमृत वेला करने के लिए आप जो हमारे लिए निकाल रहे हैं, हमारे लिए जो भी आप हाँ, सुबह-सुबह जो हम उठ के जो आप हमें अमृत वेला करवाने के लिए हमें चुने हैं, इसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का, लख-लख बार शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। आप 3 बजे भी हमें बुलाते हो, लेकिन उस टाइम आँख नहीं खुलती गुरुपा, क्या करूँ? कोशिश कर रही हूँ कि एकदम से 3 बजे उठ के शुरू करो। तो हर एक चीज़ के लिए शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, कोटि-कोटि बार शुक्राना। और गुरुपा अरदास तो बहुत कुछ है मन में, जैसे पहले अरदास है कि गुरुपा मेरे घर का सारा कुछ आपके हाथ में है, आप ही देखिए, जो भी करना है। मेरे दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड सब आपके हाथ में है, मैंने दे दिया है, आप जो करोगे बस सब ठीक हो, सब कृपा, यही चाहती हूँ, सब ठीक हो। और मेरे भैया माँ और भैया को अच्छे रखिएगा कृपा। भैया तो ओसीडी का पेशेंट है, वो सही हो जाए, वो 2-3 दिन से एकदम अजीब सा बिहेव कर रहा है, तो बस गुरुपा उसको ठीक कर दीजिए। और मम्मी भी ठीक रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। और आप ऐसे ही हमें आशीर्वाद देते रहे कि हम सब कुछ कर पाए, आगे बढ़े। तो इसी के साथ ही आज का अमृत वेला शुक्राना यही समापन करती हूँ, नई शुक्राने की तैयारी करती हूँ। और गुरुपा पूरे संगत परिवार को ब्लेस कीजिएगा, सबको हेल्प ब्लेस कीजिएगा, और सुमन आंटी को भी बहुत-बहुत हेल्प ब्लेस कीजिएगा, उनकी फैमिली को भी हेल्प ब्लेस कीजिएगा। और सबका सब मनोकामना पूर्ण हो, सब स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, सबका सब जो मन में अरदास है, जो भी है, सबका सब अच्छे से फुलफिल हो। बस इसी के साथ रखती हूँ, मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुभकामना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे प्यारे पापा शुक्राना, लग लग बार शुक्राना, कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। आज सोमवार का दिन 20 तारीख है। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं जब सत्संग सुन रही थी तो गुरु जी का मैसेज आया कि किस्मत का लेखा बदलेगा बेटा, बस तुझे जरूरतमंदों की मदद करनी है, गरीबों को खाना खिलाना है। तेरे बच्चे को निरोगी काया का आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ और कोई भी बीमारी तेरे परिवार को छू नहीं सकती। इतनी तरक्की होगी जो तुमने सोची भी नहीं होगी। मैं तेरे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। अब तेरा फर्ज जरूरतमंद माँ और उसके बच्चे तक आशीर्वाद पहुँचाना। गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। बच्चों और मेरे परिवार की तरफ से आपको लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, आपका एक मैसेज और भी आया था कि बच्चों और परिवार को जल प्रसाद पिलाया करो, इसमें बहुत शक्ति है। शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। पर गुरुजी, तांबे का लोटा सुमन आंटी जी कैसे ब्लेस करें? मेरे पास स्वरूप भी नहीं है गुरुजी का। मैं फोन से ही गुरुजी का स्वरूप देख लेती हूँ,
सुमन आंटी जी, गुरुजी आप इसका उपाय ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी जी। आपको एवं आपके परिवार को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। एक मैसेज में गुरुजी ने ये भी बताया, बेटी तेरी इनकम बढ़ने वाली है, तूने बहुत दुख देख लिए, अब तेरा वक्त बदलने वाला है। जो खुशियाँ तू बच्चों के लिए सोचती है वो सब तुझे मिलेंगी। अपने घर की सफाई अच्छे से कर, जूते चप्पल गेट से हटा दे। गुरुजी मैंने ये काम भी कर लिया है और ये आशीर्वाद जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो अकेले मत रखो, सबके साथ साझा कर दे। खुशियाँ देने के लिए, राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गुरुजी, जो आपने मुझे अपने साथ जोड़ा। गुरुजी अपने परिवार को भी आप अपने साथ जोड़ लीजिए। दोनों बच्चों की विश पूरी कर दीजिए गुरुजी। पति अंकल की हेल्थ भी ब्लेस कर दीजिए और पति अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। सुमन आंटी जी आपको हमेशा गुरुजी की ब्लेस मिलती रहे। सत्संग सुनने वाले साथ संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की ब्लेस साथ संगत जी को भी हमेशा मिलती रहे, उनकी इच्छाएं पूरी होती रहे। सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी एवं सुमन आंटी जी मैं माफ़ी चाहूँगी। नानक नाम चढ़दी गला, तेरे पाने सरबत दा भला। गुरुजी मेरा और सरबत दा भला करिए। अंत में गुरुजी की आज्ञा से मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज 21 जनवरी 2025 समय अमृत वेला 5 बजे हैं। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। गुरु जी महाराज जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। आज अमृत वेला में उठने में देर हुई, गुरु जी महाराज से क्षमा याचना करता हूँ। गुरु जी महाराज हर रोज़ जगाते थे, आज नहीं जगाया। गुरु जी महाराज ने माफ़ी चाहता हूँ। गुरु जी महाराज कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। महाराज दया के सागर, दया निधि, दया निधान, कृपा के सागर, हे मेरे गुरु महाराज आपकी कृपा बनी रही, यही प्रार्थना है। शुक्राना है मालिक आपका, जो गुरु जी महाराज आपने सांसों की डोर बख्शी है, अपने चरणों में बिठाया है, अभी भी बिठाया है। आपका शुक्राना है मालिक। गुरु जी महाराज ने आज शाम से ही खुद गुरु जी महाराज ने मंत्र जाप लगवाया था और गुरु जी महाराज ने सारी रात मंत्र जाप चलाया। शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरा मालिक ही जानता है, वो ही खुद करता है, खुद ही करवाने वाला है। हर पल खुद ही हमारे लिए अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे। गुरु महाराज खुद ही जानते हैं क्या हमारे लिए अच्छा है, वो खुद ही करते रहते हैं। संगत जी हम निमानी संगत नहीं जानते गुरु जी महाराज हमारे लिए कितना करते हैं। शुक्राना है मालिक का, शुक्राना है, शुक्राना है गुरु जी महाराज का,
जो हर पल संभाले हुए हैं, हर पल साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, हमें एहसास कराते हैं, विश्वास जगाया है उसका शुक्राना है, जो आस बंधाई है उसका शुक्राना है संगत जी। अंग संग सदा सहाय रहते हैं उसका शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना है हर एक पल का जो गुरुजी महाराज हमें दे रहे हैं। संगत जी, हमारा सौभाग्य है ये जो गुरुजी महाराज ने चरणों से जोड़ा है, हमारे लिए तो वो ही काफ़ी है। गुरुजी महाराज चरणों से लगा के रखें, हमारी तो प्रार्थना है गुरुजी महाराज अपना नाम जाप सिमरन सत्संग करवाएं, सुनवाएं, मेहर बरसाएं गुरुजी महाराज, वो ही काफ़ी है गुरुजी महाराज। संगत जी, हर पल का शुक्राना है गुरु महाराज का जो हमें हर समय हर पल जो गाइडेंस देते हैं, सत्संग सुनवा करके हाथ पकड़ के जो करवाते हैं, शुक्राना है मालिक का, शुक्राना है जो दिन भर में हमारे से करवाते हैं उसका शुक्राना है। शुक्राना है जब मालिक की मेहर ही होती है तभी हम कुछ कर पाते हैं। तो मालिक से प्रार्थना यही है सारी संगत की तरफ से, मालिक सब पर मेहर करे, सबको अपने चरणों की सौगात बख्शें और ऐसे ही चरणों से लगाए रखें संगत जी। और गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है संगत जी। शुक्राना है मेरे मालिक का, डूंगरी वाले गुरुजी महाराज का शुक्राना है, शुक्राना है बड़े मंदिर वाले गुरुजी महाराज साहिबा का। महाराज का मैसेज आ रहा था कल कि तेरे को बड़े मंदिर बुलाऊंगा, बड़ा जल्दी बुलाऊंगा। तो गुरुजी महाराज का लाख लाख शुक्राना है उसके लिए। गुरुजी महाराज जब बुलाएं, हमारा सौभाग्य होगा जब गुरुजी महाराज बुलाएंगे। पीछे तो 31 दिसंबर को नए साल पर बुलाया था गुरुजी महाराज ने। अभी जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा और वो सौभाग्य प्राप्त होगा, शुक्राना है मालिक का बताने के लिए। इसी के साथ ही शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। कोई गलती हो गई है संगत जी, गुरुजी महाराज माफ़ करना। गुरुजी के मंत्र के साथ में सारी संगत मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, सारी संगत को जय गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो सुमन आंटी जी। मैं रीनू गुप्ता जम्मू से गुरुजी की नई संगत बोल रही हूँ। मैं गुरुजी से अभी 2-3 महीनों से ही जुड़ी हूँ, लेकिन ऐसे लगता है जैसे गुरुजी और मेरा साथ तो जन्मों जन्मों का है। गुरुजी नहीं, मेरे पिता हैं, वो मेरे गुरुपा हैं, वो मेरे बच्चे के नानू हैं। गुरुजी मुझे हमेशा ब्लेसिंग देते रहते हैं। आज उनकी ब्लेसिंग आई है कि मैंने सुपर डुपर लिखा था, पर लगता है कि तेरे घर वाले चाहते नहीं कि तेरे सोए भाग उठ जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो ताला कई सालों से बंद पड़ा है वो ओपन हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तेरे घर के बुरे हालात एकदम से ठीक हो जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी आगे लिखते हैं कि तू हल्की सी भी टेंशन मत ले, आज तेरे घर की सारी नेगेटिविटी को और परिवार वालों की बुद्धि को रिफ्रेश कर दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आगे गुरुजी लिखते हैं कि उसके बाद तू कई सालों तक बहुत सुखी और आरामदायक जिंदगी जिएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसे मजाक मत समझ, आज सब ताले खुल जाएंगे तेरे सिर्फ एक शुक्राने से। जल्दी से कर दे बिना गलती किए हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं बहुत सत्संग करती हूँ, लेकिन कोई भी सत्संग मेरा अपलोड नहीं होता। मेरा कोई भी चैनल वाले मेरा अपलोड नहीं करते हैं। मुझे तो ऐसे ही बोलना आता है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी, मेरा ये वाला सत्संग प्लीज़ अपलोड कर दीजिए। सुमन आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप मेरा ये सत्संग अपलोड कर दें। गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग आपको मिले। जय हो गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बापू जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वाह वाह, शुक्राना मेरे गुरु पा, वाह गुरु शुक्राना मेरे गुरु पा, पल पल शुक्राना मेरे गुरु पा, धन धन शुक्राना मेरे गुरु पा, ब्लेसिंग ऑलवेज शुक्राना मेरे गुरु पा, लव यू शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे अंतंग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, हर सांस का मेरे शुक्राना मेरे गुरु पा, जो दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पा, नहीं दिया उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पा, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे सर के ऊपर हाथ रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे हाथ थामने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, हर गलती को माफ करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, मेरे ऊपर गुस्सा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी, मैं गुरुपा का सत्संग करने जा रही हूँ गुरुपा के मंत्र के साथ। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं सिलीगुड़ी ग्रीन वैली सोसाइटी में रहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे को जय गुरु जी, संगत जी, मेरे को शुक्राना सत्संग करना नहीं आता है। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटा तू शुक्राना कर, तेरा दिन बदली होने वाला है बेटी, शुक्राना कर। इसलिए मैं शुक्राना करने जा रही हूँ। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा संगत जी, माफ करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी तेरे बेटे के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे ऊपर कोई मारन क्रिया ब्लैक मैजिक किया हुआ है बेटी, सत्संग सुन, तेरा सब ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा मेरे गुरुपा। मेरे को ये शुक्राना सत्संग करना आता नहीं है, कोई भी भूल चूक हो तो माफ करिएगा गुरुपा, माफ करेंगे संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी जैसे तू शुक्राना सत्संग करेगी वैसे तेरे सारी इच्छा पूरी करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस जैसे तेरे को इंतज़ार है वैसे ही मेरे को भी तेरा शुक्राना का इंतज़ार है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का मैसेज आया था, बेटी तेरा तबीयत खराब रहता है, तू अर्जुन की छाल में डाल के पिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत बहुत
शुक्राना गुरु जी, मेरे गुरु पा तो बहुत ही टेंशन लेते हैं हम लोग के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एक एक दवाई भी बताते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ये सब बताने के लिए मेरे गुरु पा का बहुत 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 शुक्राना। मेरे गुरु पा हम लोग का ध्यान रखने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पा मेरी गलती को माफ़ करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पा सर के ऊपर हाथ रखने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पा हम लोग का हाथ थामने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पा हर गलती को माफ़ करने के लिए शुक्राना। मेरे गुरु पा तब भी मैसेज आता है तब भी गुरु पा बोलते हैं कि बेटी शुक्राना कर, तेरे शुक्राना का इंतज़ार कर रहा हूँ। बेटी शुक्राना कर, तेरे शुक्राना का इंतज़ार करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा जय गुरु जी। संगत जी, मेरे को ये सत्संग करना आता नहीं है, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। संगत जी माफ़ करिएगा। गुरु पा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा अब ये सत्संग में ये विराम करने जा रही हूँ गुरु पा के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, कोई भी भूल चूक हो तो माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, माफ़ करिएगा। जय मेरे पापा जी, पिताजी, बापू जी, मेरा सब माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पा लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरु पा करोड़ करोड़ बार शुक्राना। मेरे गुरु पा अरबों अरबों बार शुक्राना। मेरे गुरु पा खरबों खरबों बार शुक्राना। मेरे गुरु पा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन जी, जय गुरु जी और संकेत जी। आज मैं गुरु जी की प्यारी बेटी हांगकांग से आज का अपना शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के पावन चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। और गुरुपा के इस पावन सत्संग को मैं उनके सुमन जी के चैनल पे कर रही हूँ। और गुरुपा और सुमन जी से मेरी प्रार्थना है मेरे सत्संग को शेयर करें। गुरुपा की पावन महामंत्र से मैं सत्संग को आरंभ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर श्वास का शुक्राना। शुक्राना गुरु जी का शुक्राना। जितना भी करे उतना कम है। गुरुपा हमेशा अपने हमारे अंग संग रहते हैं। गुरुपा जो है मेरी मदर इन लॉ है, उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं गुरुपा से अरदास कर रही हूँ। गुरुपा उनको तकलीफ़ ना दें, उनकी रक्षा करें, है ना। वो उनकी एज हो गई है काफ़ी, लेकिन 80 समथिंग, बट 83, बट स्टिल वो हमारी माँ हैं। और गुरुपा उनको सेहत बख्शे, उनकी तबीयत को ठीक रखें, है ना। तो गुरुपा ये जो है वो हर पल हर क्षण हमारे रक्षा करते हैं और हमारे अपनों की रक्षा करते हैं। गुरुपा ने हमको कितने संकटों से बचाया है और कितने बार जो है हम एक्सीडेंट से बचे हैं और कितने बार हमें मतलब कोई भी बीमारी आने से पहले और आने के बाद भी उन्होंने वहाँ से निकाला है। तो मैं गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और गुरुपा जो है हमेशा ऐसा फील होता है कि हर जगह हमारे साथ हमारे अंग संग ही रहते हैं। और गुरुपा ने मैंने कई बार बताया है उनकी महिमा की, उन्होंने किस तरह से हम पर कृपा की है और हमारे अपनों पे कृपा की है। तो गुरुपा ने जो है हमें कई बार एक्सीडेंट से बचाया है। एक बार जो है मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं बहुत ज़ोर से, मेरे हस्बैंड अंकल हमें चाह रहे थे, तो मैं देहरादून की बात है, उस वक्त जो मेरे हस्बैंड अंकल मैं जो है स्कूटर पे जा रहे थे और वो मैं ऐसी बैठी थी, स्कूटर ज़ोर से जैसे उन्होंने ब्रेक लगाया, स्कूटर उछला और मैं प्रेग्नेंट की हालत थी। 3-4 मंथ्स, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ही थे और मैं इतनी ज़ोर से जो है स्कूटर से नीचे गिरी। तो मुझे लगा कि इस वक्त जो है मेरा
मतलब मैं तो गई, अब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, उस दिन जोर से गिरी हूँ। लेकिन जब मैं मतलब उठी और वापस गई और अभी देख डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई, तो डॉक्टर ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, आपको भगवान ने बचाया है। ऐसी के थर्ड मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में बहुत डेंजर होता है, बट आपका एवरीथिंग जो है वो ठीक है। तो मैंने माता रानी का और गुरुपा का अनंतम शुक्राना किया। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना है हर पल हर सांस के लिए। आपने हमें किस तरह से आप हमें बचाते आ रहे हो, हर संकटों से हमारे अपनों को बचाते आ रहे हो। आपने मेरी सिस्टर को भी बहुत बार बचाया है, उसे कई बार 1-2 बार उस वक्त जो है उसको टीबी हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हुई थी, बहुत बीमार हुई थी। लेकिन आपने उसको उससे बाहर निकाला और उसको भी मतलब बेटर हुई और उसकी भी आपने रक्षा की। तो गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप हो तो जीवन है, आप नहीं तो जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हम। गुरुपा प्लीज़ हमारे अंग संग हमेशा रहना, अपनी बेटी अपनी उसके परिवार पे, उसके सब अपनों पर और सब सारी बेटियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुपा आई लव यू मेरे गुरुपा, आई ऑलवेज लव यू। आपका शुक्राना तो मैं दिन रात करूँ वो भी कम है। सो गुरुपा अब मैं शुक्राना सत्संग जो है छोटा ही करूँ तो है, क्योंकि बड़े सत्संग को सुनने में सबको टाइम की लगता है। तो इसलिए गुरुपा आज के शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समापन करती हूँ आपके महामंत्र के साथ। कल फिर नए सत्संग के साथ आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। सत्संग सुनाने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत जी, गुरु जी, सुमन जी मुझे क्षमा कर देना। गुरुपा सर्व पर आपका भला करना, सब पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखना। आई लव यू मेरे गुरुपा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जय सुमन आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे गुरु जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना। मैं प्यारे गुरु जी के चरण कमलों में बैठी हुई हूँ। जोत जोड़ने से पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, वैसे तो मुझे ऐसे ही आता है, सिंपल सा सत्संग करना आता है, लेकिन यह है जो भी है स्वीकार कर लेना गुरु जी। आपकी बड़ी कृपा होगी, मेहरबानी होगी, अपनी गुरु कृपा हम पे बरसाने के लिए। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारा ब्लेस करने के लिए, हमारा घर ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को सुख शांति देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे पति को सुधारने के लिए शुक्राना गुरु जी। कभी कभी ऐठ दिखा देता है, वो कभी अकड़ में हो जाता है ना, कभी जब मन बहुत दुखता है गुरु जी, पता नहीं क्या हो जाता है उसे कभी कभी। गुरु जी शुरू से उसने मेरी कभी नहीं सुनी, ना मुझे कभी अपने घर में उसने मान सम्मान दिया, ना मुझे अपने घर की लक्ष्मी समझा। हमेशा अपनी अकड़ में घमंड में ही रहा, अपने आप को ही ऊपर रखा। मुझे पैर की जूती भी नहीं समझी इस आदमी ने। गुरु जी मैंने बहुत जीवन निकाला इसके साथ, बड़ा संघर्ष किया है इस आदमी के साथ मैंने। इसने मुझे कभी सुख का एक पल नहीं दिखाया गुरु जी। हो सकता है मेरे कर्म ही खराब हों गुरु जी, हो सकता है इसने मेरे कर्म कटवाए हों गुरु जी। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरु जी का और अपने इस पति अंकल का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। सारी ज़िंदगी मुझे दुख देने के लिए शुक्राना, मेरे कष्ट कटवाने के लिए शुक्राना। मेरे जितने भी बुरे कर्म थे सब कटवा दिए इस आदमी ने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो बच्चे कुछ कर्म खराब थे वो बच्चों ने पूरे कटवा दिए। मेरे बच्चों ने थोड़ा बहुत दुख दे के वो कटवा दिए मेरे कष्ट। मेरे बच्चों का भी बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन मेरे पति अंकल भी बहुत अच्छे हैं संगत जी, और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जब कोई बाहर से ब्लैक मैजिक करता है तो फिर उनका क्या दोष है इसमें, लेकिन सभी अच्छे हैं मेरे घर में। मैं भी अच्छी हूँ बहुत, मेरे मन में भी दया भावना रहती है हमेशा। मेरे दोनों बच्चे भी ऐसे ही हैं, दूसरों पे दया करने वाले हैं, जीव जंतुओं की सेवा करने वाले हैं। मैं भी ऐसे ही हूँ संगत जी। पति अंकल पहले सांप बहुत मारा करते थे, सांप बहुत मारते थे। जब मैं गांव में नई नई आई थी, कहीं सांप निकल जाता था गांव में तो इसे ही बुला कर ले जाते थे कि राजपाल चलियो। जब से मैंने इनसे मना करी ना, मैंने कि नहीं, जंगल में से भी कहाँ जाएंगे बेचारे, ये जंगल में से भी मारेंगे तो इन्हें,
क्योंकि हमारे घर के बाहर गाँव है, गाँव के बाहर ऐसी कच्ची ज़मीन है, उसमें सांप निकलते रहते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पाप मत करा करो। ये बेचारे अपना इनका जंगल इनका घर है, ये जंगल में से भी मारे जाएंगे तो क्या बीतेगी इन पे। हमें हमारे घर से भगाए तो हमारे दिल पे क्या बीतती है। संगत जी, मैंने इस आदमी का सांप मारना बहुत छुड़वा दिया। कुत्तों को बहुत मारता था, कुत्तों को, पिल्लों को घर में आ जाते थे ना, छोटे छोटे पप्पीज, उनको डंडी मार मार के भगाता था। इसने बहुत पाप करे हैं गुरुजी, बहुत पाप करे हैं। मैं नहीं जानती इसने अपने पापों की सज़ा भोग ली है नहीं भोगी है, मैं नहीं जानती गुरुजी, पर इसे माफ़ कर देना। इसकी तरफ से मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अब बहुत सुधर गया है। अब तो हमारी तरह दयालु हो रहा है। जैसे हम सेवा करते हैं ना छोटे छोटे पपीज़ की, और छोटे छोटे कुत्तों को खाना देते हैं हम, जैसे डॉगीज़ को खाना देते हैं, तो ये भी खाना देता है अब रोज़ डेली। एक टाइम का खाना तो हम देते ही देते हैं संगत जी। सुबह खाते नहीं हैं रोटी, सुबह हम डालते हैं कुत्तों को तो नहीं खाते। हाँ, रात को पेट भर के खाते हैं हमारे घर से। हम देते हैं, हम क्या देते हैं, मेरे परमपिता परमात्मा ने हमें ड्यूटी दे रखी है। ये तो मालिक ने हमें सेवा बख्श रखी है, मालिक का काम हम करते हैं, हमारे ज़रिए काम करवाते हैं गुरुजी। खिलाने वाले वो, पालने वाले वो, सबका भरण पोषण करने वाले मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई खाते खाते मर जाता है, कोई खिलाते खिलाते मर जाता है, दुनिया की ये रीत है। कोई बात नहीं गुरुजी, आपने हमें चुना इस सेवा के लिए, हमें चुना, हमें सेवा बख्शी, इसके लिए मेरे प्यारे गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, सुबह सुबह मैं चिड़ियों को दाना भी डालती हूँ, बाजरा और गेहूँ मिला कर डाल देती हूँ, पानी की कुंडी भर कर रख देती हूँ। बेचारे पूरे दिन खाते रहते हैं। कबूतर, इतने सारे कबूतर आ जाते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो कबूतर दाना खाते हैं, बहुत खुशी होती है। मेरे पति अंकल सुबह सुबह डाल देते हैं, मैं उन्हें निकाल के दे देती हूँ, बोरी में से वो डाल आते हैं। बाजरा हमारे गाँव में राशन में मिलता है जी, बाजरा और गेहूँ, चीनी और तेल और चाय पत्ती, ये सारी चीज़ें मिलती हैं हमें राशन में। तो हमारा तो जो टंकी में अनाज भरा रहता है ना संगत जी, उसमें खेतों का, वो तो ऐसे ही भरा रहता है, उसे तो हम वैसे बेच देते हैं। कोई ज़रूरतमंद आता है तो 1 मन 2 मन, 1 क्विंटल 2 क्विंटल ऐसे दे देते हैं। लेकिन जो हमारा राशन का है वो चिड़ियों को चला जाता है, चिड़ियों का काम आता है। मेरे पति अंकल अभी कल परसों कह रहे थे कि मैं बाजरा बेचूंगा। मैंने की कोई ज़रूरत नहीं बाजरा बेचने की, हम तो और ख़रीदेंगे बाजरा चिड़ियों के लिए। अरे चिड़ियों का तो पेट भरेगा कम से कम, मैंने मना करा उनसे, तो उन्होंने बाजरा नहीं बेचा। क्योंकि हमें पुराने कई महीना का भी बाजरा बचा पड़ा है, मैं रोज़ घना घना डालती हूँ संगत जी। जब भी बाजरा हमारा निवरता नहीं है, ये तो परमात्मा की मेहर है, हम पे बरकत है। हमारे घर में ना अनाज निवरता, ना हमारे घर में बाजरा निवरता, क्योंकि मालिक ने मेहर कर रखी है। मालिक ने इनके हिस्से का भी दे रखा, तो हम क्यों इनका पेट वो करेंगे बेचारों का, पक्षियों को भी डालते हैं, और हमारे ज़रिए गुरुजी पेट भरवाते हैं, और इनको भी। इसके लिए मैं अपने प्यारे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आज का शुक्राना अपने पुत्र अंकल जी की ओर से कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल 19/1/25 की बात है। बेटे अंकल जी को ऑफिस के काम से आउट ऑफ प्लेस जाना था। गुरुपा ने सब टिकट वगैरह आराम से आने जाने के करवा दिए। शुक्राना गुरुजी। आज सभी काम गुरुजी के आशीर्वाद से सभी ठीक से हो गए, एवं एक नया ऑर्डर भी सामान का मिला है। तो गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा अपने सभी बच्चों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, एवं उन्हें भी अपने चरण शरण में लगाए रखें। जय गुरुजी। गुरुपा, एक और मेरा छोटा सा सत्संग है। मैंने अपनी बहू आंटी के लिए भी गुरुपा से अरदास लगाई है कि गुरुपा उसका काम भी ठीक से शुरू करवा दीजिए। वह भी अपना कुछ ऑनलाइन घर पर बैठ के काम करना शुरू करना चाह रही है। तो गुरुपा उसे भी आशीर्वाद प्रदान करिए। जय गुरुजी।
शुक्राना गुरुजी। एवं उसकी हेल्थ भी ब्लेस करिए गुरुपा। और एक और मेरा छोटा सा शुक्राना है, मेरे घर पर जहाँ मैं रहती हूँ, जॉब करती हूँ वहाँ पर, तो बेटे जी तो बाहर रहते हैं, तो वहाँ पर मैंने एक पानी के स्टोरेज के लिए एक वाटर टैंक बना हुआ है मेरे घर पर। अचानक से पानी अपने आप कम हो रहा था, शायद उसमें कोई दरार आ गई थी, तो 1-1.5 महीने तक तो ऐसा ही चलता रहा। अब मैं नल से पानी भरती हूँ और वो अगले दिन आधा खाली हो जाता है। अब ठंड में इतना, मतलब जो छत की जो टंकी है उसका पानी कम काम में आता है, और वो इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता है कि बर्फ़ की तरह, तो वो काम में नहीं आता है। तो डेली यूज़ के काम के लिए टैंक का पानी ही ठीक रहता है। तो अब वह रोज़ खाली हो रहा है, तो मुझसे इतना झुका भी नहीं जाता है उसमें से पानी निकालने के लिए, तो बड़ी मुश्किल से मैं पानी निकालती थी उसमें से। तो एक दिन मैंने पानी की बाल्टी भरते हुए मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा प्लीज़, इतना मुझसे झुका नहीं जाता है गुरुपा, कुछ तो करिए। तो आप संगत जी आश्चर्य करेंगे, अगले दिन जब नल आए तो मैंने उसे पुनः पूरा भर दिया, और शाम को जब मैं ऑफिस से आकर देखती हूँ तब भी वह पूरा भरा हुआ था, उसमें से पानी बिल्कुल भी खाली नहीं हुआ। गुरुपा अपनी बेटियों को बिल्कुल भी मुश्किल में नहीं देख सकते हैं। गुरुपा ने टैंक को ऑटोमेटिक रूप से ठीक कर दिया, अब उसमें से पानी बिल्कुल भी नहीं रिस रहा है। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा हमारे अंग संग ही रहते हैं। गुरुपा से हम जो भी बात करते हैं, गुरुपा हमारी सारी बातें सुनते हैं और हमारी परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। अपनी बेटियों की सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करके अगले सत्संग की तैयारी गुरुपा के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी एवं आंटी जी पर अपना आशीर्वाद भी गुरुपा इसी प्रकार बनाए रखें। सभी बच्चों को भी ब्लेस करें, उनकी हेल्थ ब्लेस करें। गुरुपा जय गुरु जी। सभी को प्रणाम एवं नमस्कार। सत्संग सुनाते समय मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सुमन आंटी जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो हमें गुरुपा ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो संगत जी, हमारे जहाँ सत्संग हर मंथ सत्संग होते हैं, 2 सत्संग होते हैं। तो कल 19 तारीख को सत्संग था हमारे जहाँ, तो हम सत्संग में गए। तो सत्संग में संगत जी हमारी सेवा लगी होती है, चाय प्रसाद की और लंगर प्रसाद की। तो जैसे हमने माथा टिका, वो तिलक लगाते हैं ना गुरु जी का, वो तिलक लगाया। तो ठीक है, लंगर प्रसाद किया। लंगर प्रसाद करने के बाद तो जल प्रसाद मिलता है गुरु जी का जल प्रसाद वो लेकर हम घर में आ गए। जब हम घर में आए तो मैंने ना हमारे जहाँ पे गुरु जी का लॉबी में स्वरूप लगा हुआ है और नीचे दीवान बेड लगा हुआ है, तो मैंने ना वो जल प्रसाद लाकर वहाँ रख दिया। तो ऐसे वहाँ ही पड़ा रहा। तो फिर हम ऐसे ही पड़ा रहा। तो वैसे फिर मैं जैसे ही सुबह उठी तो मैंने ना ऐसे ही फ़ोन खोला, तो फ़ोन में ना गुरु जी का मैसेज आया
कि तू ऐसे किया कर तो मैं ना तुझे दर्शन दूंगा। तो मैंने कहा गुरुजी आप दर्शन तो मुझे देते ही नहीं हो, तो मैं चलो ठीक है मैं करूँगी तो ज़रूर, ठीक है। तो फिर मैंने जब वो पानी वाली बोतल उठाई तो वो सील बंद थी, तो उसमें ना आधी बोतल पानी की खाली थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे नहीं पता जे पानी जल प्रसाद कहाँ गया और मेरे गुरु जी ने क्या किया उस जल प्रसाद का, जे गुरु जी जाने, मैं कुछ नहीं जानती। और फिर जो मैं नहाने को जा रही थी तो मैं अपनी अलमारी में गई, अलमारी से कपड़े निकालने लगी तो मैंने अपना जैसे शीशे में फेस देखा तो मेरे पूरा ओम बना हुआ था। जो गुरुजी का तिलक था ना लगा हुआ, उसका सुबह ओम बन गया। तो रात को कुछ नहीं था, तो सुबह वो ओम बन गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप आपने मुझे दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे ब्लेस किया, मेरे जल प्रसाद को ब्लेस किया गुरु जी। ऐसे ही हमारे परिवार पर अपना हाथ बनाए रखना और अंग संग बच्चों के सहाय रहना, हमारे साथ रहना गुरु जी, हमेशा हमारे साथ रहना और हमारा साथ देना। मेरे गुरु पा हमेशा साथ रहना। हमें बहुत कृपा हुई है गुरु जी की और आगे भी होती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी की, गुरु जी हमारे साथ ही रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी। मेरे गुरु पा बहुत दयालु हैं, बहुत सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं गुरु जी की आज्ञा से सुखना से शेयर कर रही हूँ। शाम को टाइम हुआ है 8:10। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि शुक्राना सत्संग शेयर कर बिटिया। तो मैं शाम की जोत जलाई है और मैं गुरु जी के आगे बैठ के अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी जो भी बुलवाएंगे, हम प्लानिंग तो बहुत करते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, लेकिन बुलवाना तो गुरु जी को ही होता है। तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का सत्संग में सुमन आंटी के व्हाट्सएप पे शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और भी चैनल पर कुछ ही 1-2 सत्संग भी शायद अपलोड हुए हैं। तो सुमन आंटी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरा सेशन शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। और चैनल पे मैं रिक्वेस्ट डाली कि मेरे सेशन शेयर कर दीजिए और गुरु जी से भी मैं अरदास करते हुए मेरे सेशन शेयर कर दीजिए। तो मेरा सेशन ये है कि गुरु जी महाराज की तो हमेशा अपार ब्लेसिंग रहती है। गुरु जी तो कहते हैं कि बस शुक्राना करो और ब्लेसिंग तो लेनी होती है पर शुक्राना नहीं करती है बिटिया, शुक्राना करना भूल जाती है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु जी ने इतने अच्छे अच्छे मैसेज देने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज, इतना कष्ट काटने के लिए शुक्राना गुरु जी महाराज। और जो भी हमने गलतियाँ की है उसको गुरु जी ने हमें माफ़ किया है और कहा है कि पहले जो हो उसे भूल जाओ और आगे कुछ ऐसा ना करो कि तुम्हारे कर्म खराब हो। तो अच्छे कर्म करो, जिसकी मदद हो सके वो करो। तो गुरु जी से मैं 2023 में जोड़ी थी, लेकिन गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा था 2024 में मई में। तो तब से गुरु जी की अपार ब्लेसिंग है। गुरु जी ने मेरे बच्चों के ऊपर मेरे ऊपर बहुत कृपा है। गुरु जी ने मेरे बच्चों को जो ब्लेस की हुई है, मेरे हस्बैंड को भी हेल्थ और मुझे भी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। और मेरा छोटा बेटा है वो 10th में है, तो गुरु जी देखेंगे उसके पेपर कैसे करता है वो। और गुरु जी से बस यही अरदास है कि मुझ पर मेरे बच्चे पर अपनी कृपा ऐसे बनाए रखें। और गुरु जी के जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मुझे ब्लैक मैजिक के बहुत ज़्यादा सत्संग आते थे। और गुरु जी ने मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी उन दिनों,
मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और वो दिन और आज का दिन है, मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, अपने काम कर पाती हूँ। अपने मेरे घर में मेरा मन नहीं लगता था, मैं बाहर चली जाती थी, और बहुत नेगेटिविटी थी, बहुत नेगेटिविटी हो गई थी उस टाइम। उस बात को 1 साल होने को आया, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरु जी का जल प्रसाद पीती हूँ, जितना तिलक लगाती हूँ। अपने घर में भी मैं मटका रखा है, उसमें डाल देती हूँ, सब पी लेते हैं। कभी वैसे तो कहते हैं, वो पीता नहीं, क्योंकि गुरु जी से मैं जुड़ी हूँ। पर मैं चाहती हूँ कि गुरु जी से मेरे सभी परिवार के जुड़े, और गुरु जी चाहेंगे जब जुड़ जाएंगे, तो गुरु जी ने क्या नेगेटिविटी थी उन्होंने काटी, और जो भी मेरी शरीर की प्रॉब्लम थी वो ठीक करे गुरु जी का अंतत शुक्राना। और मेरे बच्चों को भी समय समय पर उनको लाइफलेस करते हैं गुरु जी, हमारे उनके कष्ट काटते हैं। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मेरे बच्चों के साथ हो जाती है, तो गुरु जी उनको देखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं गुरु जी। तो गुरु जी का अनंत अनंत शुक्राना उस चीज़ के लिए भी। और गुरु जी से भी यही अरदास है कि अपनी ऐसी आशीर्वाद बनाए रखे, और जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, जाने जाने में या पाप में, जो भी उसके लिए गुरु जी मुझे क्षमा करे। मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के गुरु जी से क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी, जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। और गुरु जी कहते हैं, तो भोली दी है मेरी प्यारी दी, और मेरी मुट्ठी और संगत में है, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती कि गुरु जी ने मुझे मुट्ठी भर संगत में अपनी रखा है। तो हम चाहते हैं कि गुरु जी ने अगर हमें ये कहा है, तो हम उनके वचनों पे चले, किसी का बुरा न सोचे, कोई कुछ भी सोचे, पर हमें नहीं सोचना है, और ना ही उनके ऊपर ध्यान लगाना है। जो बुरा कर रहा है वो कर रहा है, अपने कर्म खराब कर रहा है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें अपना काम करना है, गुरु जी का मंत्र जाप करना है, गुरु जी के सत्संग सुनने हैं, और गुरु जी से क्षमा याचना भी करनी है अपने गलतियों के लिए। तो बस मेरी यही पूरी संगत से अरदास है, और कि अच्छे काम करो, और किसी का बुरा मत सोचो। गुरु जी बैठे हैं, वो अपना आप देखेंगे क्या करना है, कौन क्या कर रहा है, वो सब देख रहे हैं। हम जो नहीं देख सकते वो गुरु जी देख सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपना सत्संग, यहीं पे अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ, और यहीं पे अपना सत्संग छोड़ती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना, अच्छी का शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अगले सत्संग फिर से शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं तो दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा कि मैं अभी शुक्राना सत्संग 2-3 दिन से नहीं कर पा रही हूँ, और उस दिन में मैंने किया था, तो जब ये आए तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया था। दिल से क्षमा मांगती हूँ। और आज बहुत सुंदर, कल मंडे था, तो रास्ते में जाती हूँ तो मुझे मन में आ ही रहा था कि पीकॉक दिख जाए। और आप मानेंगे संगत जी, शायद मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे पिछले 2-3 मंडे से हर मंडे को मतलब पीकॉक दिखे जाते हैं। फिर मैंने पिक ली थी। शुक्राना 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 गुरुपा। और आज एक साधु बाबा आए, तो उन्होंने मेरे को जैसे बोलते हैं कि, जैसे ऑफ कोर्स साधु बाबा हैं, तो मैंने पहले सोचा कि खाने के लिए देखूं, लेकिन फिर मैंने कहना कि मैंने उनको 50 रुपीज़ दे दिए। संगत जी, मैं बताना चाहती, लेकिन एक बात कर रही हूँ। तो मेरे को पता नहीं, एक जैसे आता ना हमेशा, एक हम देखिए, हमारे ना जो सोच का तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सोच अच्छी भी हो जाती है, पता नहीं कौन से विचार उठ के आ जाते हैं। तो जैसे गुरुपा बोलते हैं कि मैं साधु के रूप में दर्शन दूंगा, तो पीछे हुआ भी था। जब पीछे जैसे उनका मैसेज आता था, तो 1-2 दिन के बाद मुझे सच में साधु बाबा दिखाई दिए। और एक जो पीछे आए थे, तो उन्होंने कोई कंपेल नहीं किया था। ये साधु बाबा आए, बोले कि मुझे प्रयागराज जाना जाना है, 200 रुपये दे दो। तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा कि सॉरी, मैंने कहा बाबा, जो भी श्रद्धा थी मैंने कर दिया है,
तो हस्बैंड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। फिर भी मैं चुपचाप रही, मैंने उनको दे दिया। तो मैंने वो बार-बार, और आप मानेंगे संगत जी, मेरे मुँह से गुरुपा निकल गया। गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा। मैं जानती हूँ आप हर एक रूप में हैं, हर एक में आप न वो करते हैं, लेकिन अब जाने-अनजाने में से गलती हुई है तो मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ कि मैंने, और मैं बोल रही हूँ कि बाबा, बाबा करती थी, फिर मेरे मुँह से निकला कि गुरुपा। फिर पता नहीं, मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, अगर मैंने अपने शब्दों से कुछ भी गलत बोला हो। देखिए हम इंसान हैं, कभी समझ ही नहीं आती कि कब क्या बोल देते हैं और कब कैसे मुँह से कुछ भी वो हो जाता है। बट आप तो जान ही जान हो, परमपिता परमेश्वर है। और दिल से शुक्राना कि मुझे पीकॉक दिखाई दिया, मुझे 777 नहीं 5 टाइम्स 7 की ब्लेसिंग्स भी मिली, और वो भी घर पे ही। न्यूज़पेपर जैसे आता है, रास्ते में भी मुझे मिले, आज भी और उस दिन भी मिले थे। और भी बाकी ये है कि टचवुड उस दिन बहुत-बहुत दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा कि अंकल आए रात को, उन्होंने थोड़ा ड्रिंक कर रखा था, मैं मानती हूँ। संगत जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ, ये कई बार बड़े दुखी होते हैं या मन खराब होता है तो थोड़ा ड्रिंक कर लेते हैं। फ्रेंड्स के साथ जैसे बैठते हैं तो आए तो लेकिन एक बात है कि इनके मन में, देखिए मैं बहुत बार पहले भी बोल चुकी हूँ कि ब्लैक मैजिक की वजह से जो भी हमें बिल्कुल हमारा रिश्ता ख़त्म करने की नौबत थी, गुरुपा ने कृपा कर दी है। और लेकिन जब ये आए तो इन्होंने बहुत दिल से बोला, और वो जो डायवर्शन का है वो तो मैं बता ही चुकी हूँ। तो ये आकर मतलब इनको दिल में तो चुभा हुआ है कि मैं जो भी ये, लेकिन ये तो जानते नहीं ना कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा। तो कई बार मैं प्रार्थना करती हूँ गुरुबा प्लीज़ इन्हें बताइए, हो सकता है आपकी कोई इच्छा हो नहीं अभी बताने की, तो ये दिल से क्षमा मांगते हैं। मतलब वो इनको रिग्रेट हो रहा होता है कि मैं तेरे को इतने गंदे बिहेव कर रहा हूँ, या डायवर्जन की वजह से भी मैंने तुझे दुख दिया, वो इनके मन में को चुभता होगा। लेकिन फिर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर पता नहीं कैसा बिहेव करने लगते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही गुरुपा, बिल्कुल भी नहीं समझ आती। लेकिन तथ्य तो मैं भी समझती हूँ, बट फिर भी अब मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कितनी देर तक इनका ऐसे वो करती चलूँ। कई बार ये सच्ची संगत जी दिल से बोलूँ ऐसे टैरो रीडिंग तो मैं कम ही करती हूँ, लेकिन फिर भी हम लोग देखते रहते हैं। तो एक में आया था कि जैसे पिछले जन्म का कोई कार्मिक होता है हम दोनों का एक दूसरे को, जब हम किसी ना किसी दुख दिया होगा या इन्होंने मुझे दुख दिया होगा, तो इस जन्म में भी हमें इस तरह से चलता हुआ आता है। सच भी होगा, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं कितनी देर तक अपने आप को समझाऊँ ना कि मैं अपनी तरफ से तो मैं कोशिश करती हूँ। अब ये कोई गलत शब्द बोलते हैं तो मैं भी भड़क जाती हूँ, गुस्से में आ जाती हूँ। तो मैं दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा, मैं बहुत अपने आप को रोकने की कोशिश करती हूँ। मुझे मैसेजेस बिल्कुल सही आते हैं, मैसेजेस बहुत अच्छे होते हैं, स ट्रू होते हैं कि गुस्से में आकर अपना हम लोग काम बिगाड़ लेते हैं। लेकिन क्या करूँ बोलिए? अभी भी कई बार मैं जानती हूँ, और जो वेगली निकल जाता है उसके दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। छोटी-सी बात बिगड़ती है, बात कहाँ से कहाँ हो जाती है। अब आप ही कृपा करो ना, जो भी है मैं फिर वही बात आ जाती है। सब्र रखते-रखते मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कोई गलत काम ना करूँ या गलत कोई बात भी ना बोलूँ। कई बार तो मन करता है चुपचाप अपने काम ही करते रहो। एक चुप हज़ार चुप सुख है, 100 नहीं मेरे लिए तो हज़ार सुख है। क्योंकि मैं इनसे जब बातचीत करती हूँ, कोई ना कोई बात बिगड़ती है। ये गलत बोलते हैं और मैं भी पीछे नहीं रहती। फिर मैं भी लग जाती हूँ। लेकिन दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। मैं अब सच में चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाएँ। ठीक तो हैं ही हैं, बहुत अच्छे हैं, मना नहीं करूँगी। लेकिन जो भी चल रहा है वो आप जानी जान हो। कई बार मेरा बहुत अजीबो-गरीब बिहेवियर होता है गुरुपा। 2 दिन से एक तो सपने थोड़े से वो हो जाते हैं, रिकॉल करते-करते मेरा दिन कई बारी सोच में वो हो जाता है। जबकि हम सरेंडर करते हैं, हम कहते हैं कि जो आपको करना है आपके सम्मुख रख दिया है, फिर भी अपनी बुद्धि चलाते रहते हैं। उसके लिए भी दिल से क्षमा माँगती हूँ गुरुपा। और भी सत्संग है कल एक आंटी जी का लाइव सत्संग आ रहा था। वो किसी को मतलब लाइवली बता रही थी। बहुत अच्छा बताया कि कमिंग मंडे को जो है महाशिवरात्रि होगी, जैसे हर महीने की होती है मेरे ख्याल से, जो 27 जनवरी को पड़ रही है। सबको ज़रूर मंदिर जाना चाहिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाएँ, बेल पत्ता चढ़ाएँ, बेल पत्ते का जो बीच वाला पत्ता होता है उसे घर लेकर आएँ और वो अपने अलमीरा में जहाँ पर भी रखना हो रख देंगे। जब वो सूखेगा तो वो आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। कोशिश तो ज़रूर करूँगी कि जाऊँ। फिर माता के मंदिर गई, काली माता के मंदिर जाकर मैंने जोत जलाई, मैंने उनसे भी प्रार्थना की। कई बार मैं उनको ऐसे ही याद कर रही होती हूँ मतलब मन से भी बात कर रही होती हूँ। फिर उस दिन लेकिन जब मंदिर पहुँची तो मैं उनको ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। फिर भी दिल से शुक्राना करती हूँ। और भी बहुत सारे सत्संग होते हैं, ब्लेसिंग्स तो देते रहते हैं, लेकिन बटरफ्लाई की बिल्कुल भी ब्लेसिंग्स अभी तक नहीं दिख रही। मतलब बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही। जैसे आपकी कृपा गुरुपा, जैसे आपकी दया। और उस दिन आए तो मूड अच्छा था थोड़ा। फिर हमारे जो पुराने ओल्ड सॉन्ग्स थे वो हम लोगों ने सुने।
थैंक यू शुक्राना गुरुपा। बाकी सब पर दया दृष्टि बनाए रखेगा। आने वाला समय माड़ा है, जो भी है वो आप जानी जानो, लेकिन हम पर, मेरे दोनों परिवारों की ओर से पहले मैं शुक्राना करती हूँ, और आपकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखिएगा, हम सब पर बनाए रखिएगा। अपनी साथ संगत के परिवार वालों के सदा सहाय रहिएगा। हमारे कर्म इतने अच्छे हो, हम पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और जो भी हैं मतलब हम पर दया दृष्टि बना रखिएगा। जो भी हम ऑडियो वायरल करते हैं उन पर, उनके परिवार वालों को बहुत 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 आशीर्वाद दीजिएगा। कोई भी त्रुटि हो गई होगी शब्दों में तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ। और बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनते बनते रह गया, जैसे आपकी कृपा गुरुपा, जब भी आप बुलाएंगे हम पर दया दृष्टि होगी और सदा सहाय रहिएगा। फिर दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे शब्दों पर, हमारे विचारों पर न जाइएगा, पता नहीं वो तो बहुत ही बेकार हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन की आस्था को और उनको खूब 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 बढ़ाए रखिएगा और बनाए रखिएगा और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखिएगा। दिल से क्षमा मांगती हूँ संगत जी और गुरुपा आपसे भी कि कोई त्रुटि हो गई होगी तो। अपने इस सत्संग को यही विराम करती हूँ और अपने नए सत्संग के लिए तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा।